बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरों की तफसीलात। वजीर आजम इमरान खान का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। मकबूजा कश्मीर में जारी मज़ालिम का पर्दाचा कर दिया। मकबूजा कश्मीर पर भारत का कब्जा गैर कानूनी करार दे दिया। कहा कि 80 लाख कश्मीरी महसूर हैं। मुजाहिरीन पर पैलेट गन का इस्तेमाल होता है। हजारों नौजवान घरों से उठा लिए गए। आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। आलमी बरादरी तहकीकात करे। मकबूजा कश्मीर की साबिक हैसियत बहाल करना होगी। मकबूजा वादी में जबर से आजादी की आवाज को दबाया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि जब से हमारी हुकूमत आई है हमने अवाम की बेहतरी के लिए कोशिशें की। दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हमने सख्त लॉकडाउन नहीं किया। कोरोना ने दुनिया भर में गरीब और नादार अफराद को सख्त मुतासिर किया। दुनिया में जब तक हर शख्स महफूज नहीं तो कोई शख्स महफूज नहीं। India has illegally occupied Jammu and Kashmir against the wishes of the Kashmiri people and in blatant violation of the resolutions of the Security Council and indeed its own commitments to the people of Kashmir. On 5th August last year, India illegally and unilaterally sought to change the status of the occupied territories and deployed additional troops, bringing the total number to 900,000, to impose a military siege on 8 million Kashmiris. All Kashmiri political leaders were incarcerated. About 13,000 Kashmiri youth were abducted and thousands tortured. A complete curfew was imposed, accompanied by a total communications blackout. Indian occupation forces have used brute force, including pellet guns against peaceful protesters, imposed collective punishments, including the destruction of entire neighborhoods, and extrajudicially murdered hundreds of innocent young Kashmiris in fake encounters, refusing even to hand over their bodies for burial. The Kashmiri media and those daring to raise their voice are being systematically harassed and intimidated through the use of draconian laws. All of this is well documented in the reports of the United Nations High Commissioner for Human Rights, communications from the Special Rapporteurs of Human Rights Council, statements from human rights and civil society organizations. The international community must investigate these grave violations and prosecute the Indian civil and military personnel involved in state terrorism and serious crimes against humanity being perpetrated, I'm sad to say, with complete impunity. The objective of this brutal campaign is to impose what the RSS BJP regime has itself called the final solution for Jammu and Kashmir. To this end, सबर का दामन थामे रखा है। जारहियत हुई तो भरपूर जवाब देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की जनरल असम्बली में भारत को तनबीह। कहा अफगान तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं। अमन के लिए पाकिस्तान ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। अमीर मुल्क मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ देकर इंसानी हकूक़ व इंसाफ की बात नहीं कर सकते। लूटी रकम वापस गरीब ममालिक को लौटाने के लिए फौरी इक़दाम होने चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़े और दूर टोक कह दिया कि सब्र का दामन थाम रखा है। जारियत हुई तो भरपूर जवाब देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की जनरल असम्बली में भारत को तनबीह। कहा अफगान तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं। अमन के लिए पाकिस्तान ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। अमीर मुल्क मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ देकर इंसानी हकूक़ और इंसाफ की बात नहीं कर सकते। Money that could be used towards human development is siphoned off by corrupt elites. The loss of foreign exchange causes currency depreciation. That in turn leads to inflation and poverty. The quest for getting back these stolen resources is nearly impossible, given the cumbersome procedures. Moreover, the powerful money launderers have access to the best lawyers, and sadly, because they are the beneficiaries, there is a lack of political will in the rich countries to curb this criminal activity. India is playing a dangerous game of upping the military ante against Pakistan in a nuclearized environment.
Despite constant Indian provocations and ceasefire violations along the line of control and the working boundary, targeting innocent civilians, Pakistan has exercised maximum restraint. We have consistently sensitized the world community about a false flag operation and another ill-conceived misadventure by India. My parents, Mr. President, were born in the colonial India, and I was the first generation that grew up in an independent Pakistan. I want to make it clear that any attempt by the fascist, totalitarian, RSS-led Indian government to aggress against Pakistan will be met by a nation that will fight for its freedom to the end. वज़ीर आज़म इमरान खान ने नवाज शरीफ की तकरीर को भारत के बयान की अक्कास करार देते हुए कहा कि हुकूमत और फौज में दरारें डालने की साजिश की गई। नवाज शरीफ की तकरीर नशर करने की इजाज़त देने का फैसला दुरुस्त था। यू टर्न हमेशा एक मकसद के लिए होता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में कहा कि नवाज शरीफ को तकरीर की इजाज़त इसलिए थी कि आज़ादी इजहार का शोर मच जाता। नवाज शरीफ खेल से बाहर हो चुके हैं, इस वो चाहते हैं कि ना खेलूंगा और ना ही खेलने दूंगा। पाक फौज से होने वाली मुलाकातों का मुझे इल्म होता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि इनकी हुकूमत करप्ट नहीं, इसलिए फौज सारे फैसलों को बैक करती है। दूसरी जानिब अपोजिशन से खतरा नहीं, मगर कुछ वजीर अपने खिलाफ ही गोल कर देते हैं। हर जमात में इख्तलाफ राय होता है, सियासी जमातों में नज़्मो ज़ब्त बनाना मुमकिन नहीं है। वज़ीर आज़म ने एक मरतबा फिर अपने दो टोक मौक़िफ़ को दोहराते हुए कहा कि करप्शन पर किसी को NRO नहीं दूंगा। अगर अपोजिशन के इस्तीफे आए तो इन नशिस्तों पर दोबारा इलेक्शन करवा देंगे। विजन ऐसा पाकिस्तान है जिसके हाथ में कशकोल ना हो, नून हो या शीन लीग, ये लोग सिर्फ खानदानी सियासत करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान को इसलिए साथ रखते हैं क्योंकि इनके पास लोग नहीं हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अच्छी बात यह है कि चीन को पाकिस्तान की इतनी जरूरत है जितनी पाकिस्तान को चीन की। जुडिशल इंक्वायरी कमीशन ने सानेहा APS को सिक्योरिटी की नाकामी करार दे दिया। सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल की अदालती तहकीकाती रिपोर्ट में स्कूल की सिक्योरिटी पर सवालात उठा दिए। सुप्रीम कोर्ट ने सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल की अदालती तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट आम करने का हुक्म दिया। सानेहा APS की अदालती तहकीकाती रिपोर्ट 525 सफ़ात और 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसमें स्कूल की सिक्योरिटी पर भी सवालात उठाए गए हैं, जबकि धमकियों के बाद सिक्योरिटी गार्ड्स की कम तादाद और दुरुस्त मकामात पर अदम तैनाती की निशानदही की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि धमाकों और शदीद फायरिंग में सिक्योरिटी गार्ड्स जमूद का शिकार थे। दहशतगर्द स्कूल के अकब से बगैर किसी मुजाहमत के दाखिल हुए। सिक्योरिटी गार्ड्स ने मुजाहमत की होती तो शायद जानी नुकसान इतना ना होता। जुडिशल इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में मजीद कहा गया, गद्दारी से सिक्योरिटी पर समझौता हुआ और दहशतगर्दों का मंसूबा कामयाब हुआ। अपना ही खून गद्दारी कर जाए तो नताज बहुत संगीन होते हैं। कोई एजेंसी ऐसे हमलों का तदारुक नहीं कर सकती, बिलखुसूस जब दुश्मन अंदर से हो। सानेहा APS ने फौज की कामयाब को पसे पुष्ट डाल दिया। रिपोर्ट में बताया गया कि अफगानिस्तान से दहशतगर्द मुमकिना तौर पर मुहाजिरीन के रूप में दाखिल हुए। गश्त पर मामूर सिक्योरिटी एहलकार दहशतगर्दों की जानिब से जलाई गई गाड़ी की जानिब गए। गाड़ी को आग सिक्योरिटी एहलकारों को धोखा देने के लिए लगाई थी। गश्त पर मामूर सिक्योरिटी एहलकारों की दूसरी गाड़ी ने पहुंचकर दहशतगर्दों का मुकाबला किया। आर्मी पब्लिक स्कूल के शोहदा के वालिदैन अदालत में पेश हुए और कहा कि हम चाहते हैं किसी और के बच्चों के साथ ऐसा ना हो। मंसूबाबंदी के साथ बच्चों को एक ही हाल में जमा किया गया। यह वाकया दहशतगर्दी नहीं बल्कि टारगेट किलिंग था। चीफ जस्टिस ने 16 दिसंबर को आर्मी पब्लिक स्कूल के शोहदा के वालिदैन की दुआया तकरीब में शिरकत की दावत कबूल कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी। भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक बार फिर बिला इस्तेमाल फायरिंग करके आलमी कवानीन की धज्जियां बिखेर दी। भारतीय फौज की फायरिंग से 8 साला बच्चा जख्मी हो गया। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने कंट्रोल लाइन के बरोह सेक्टर में बिला इस्तेमाल फायरिंग की
आबादी पर फायरिंग से 8 साल बच्चियां जख्मी हो गया, जिसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिंध हुकूमत ने 28 सितंबर से मिडिल और प्राइमरी समेत तमाम तालीमी इदारे खोलने का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सईद गनी का कहना था कि SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाएंगे। जब तमाम स्कूल खुलेंगे तो स्कूल इंतजामिया पर दबाव आएगा। सिंध की सूबाई हुकूमत ने सिर्फ एक चीज़ मुख्तलिफ की है बाकी सूबों के मुकाबले में, वो सिर्फ ये था कि जो मरहलावार स्कूल्स खोलने का फ़ैसला हुआ था 3 मराइल में, हमने सिर्फ जो दूसरा मरहला था उसको 1 हफ़्ता डिले किया था। मतलब ये कि पहला मरहला 15 सितंबर से शुरू होना था, वो हुआ। दूसरा 21 सितंबर से शुरू होना था, उसको 1 हफ़्ता डिले करके 28 सितंबर पे लेके चले गए। और तीसरा मरहला जो 28 सितंबर को शुरू होना था वो 28 सितंबर से ही शुरू होगा, और उसके साथ जो दूसरा फेज़ था 8वीं 7वीं और 6ठी जमात का, वो भी उसके साथ शुरू होगा। तो अब और आसान कह दूं कि 28 तारीख को 28 सितंबर को सूबा सिंध में जो जमातें नहीं खुली थी, मतलब 8वीं जमात से लेकर नीचे तक की, वो सब की सब क्लासेस जो हैं वो शुरू होंगी, 28 सितंबर से शुरू हो जाएंगे। इसमें ज़ाहिर है कि परेशानी हम सब के लिए है, इसलिए कि 28 सितंबर को और उसके बाद तमाम तालीमी इदारों में, ख़ास तौर पे स्कूलों में 100% स्ट्रेंथ के साथ जो बच्चे हैं। कराची में बिजली के बदतरीन बहरान पर की इलेक्ट्रिक ने वजारत तवानाई को खत लिख दिया और दरख्वास्त की है कि नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी इजाफी बिजली फराहम करेगी। इलेक्ट्रिक का कहना है कि लोड शेडिंग पर काबू पाने के लिए हुकूमत NTDC से इजाफी बिजली फराहम करे। गैस प्रेशर में कमी के सबब के इलेक्ट्रिक के 3 प्लांट मुतासिर हैं। गर्मी की दूसरी लहर में बिजली की तलब 3400 मेगावाट तक पहुंच गई है। शेख रशीद कहते हैं कि नवाज शरीफ को इक़्तिदार से मरियम नवाज ने निकाला। अभी तो अस्करी क़यादत से मुलाकातों का जिक्र किया, टेलीफोन डेटा आउट कर दिया तो क़यामत आ जाएगी। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपोजिशन पर कड़ी तनकीद की और कहा कि धरना होगा, ना ही इस्तीफे आएंगे, तहरीके अदम एतमाद भी नहीं लाएंगे। देखें, मरियम साहबा ने पहले नवाज शरीफ को मरवाया है, अब भी इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ को मरवाएंगी। मैं चैलेंज करता हूं, कोई सियासतदान इस पाकिस्तान का बताए जो GHQ के गेट की 4 की पैदावार नहीं है। ये चाहते हैं कि सेनेट के इलेक्शन से पहले पहले इमरान खान के साथ ये झगड़ा करें। ना ये इस्तीफा देंगे, ना ये धरना देंगे, ना ही अदम एतमाद करेंगे। ये मैंने भी जनवरी फरवरी की डेट, मैंने तो 30 दिसंबर जनवरी की डेट दी है। लाहौर के मीडिया से मेरा बड़ा प्यार है, मैं आज भी 30 दिसंबर और जनवरी की तकरीर पर स्टैंड करता हूं। जिस दिन गरीब गरीब का साथी बन गया, जिस दिन गरीब ने गरीब का हाथ पकड़ लिया, ये मुल्क आगे जाएगा। सरमायादार सब एक हैं, जागीरदार सब एक हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट सब एक हैं, माफिया सारा एक है। ये क्या वजह है कि इतनी चीनी महंगी हुई, इतना आटा महंगा हुआ, लेकिन माफिया जो है क्योंकि वो इकट्ठा था। नून लीग और पीपल्स पार्टी के बुरे दिन है, ताकतवर अल्लाह है, दोनों के दरमियान से इमरान खान ने विकेट निकाली है। मुझे फख्र है कि मैं पाकिस्तान फौज का तर्जमान हूँ, कोई राह का एजेंट नहीं हूँ। मेरा दिल जो है मेरी पार्टी का आदमी है, शहबाज शरीफ से मिला हुआ, ठीक कहता है, लेकिन मुझे अफसोस होगा कि जो उसने लूट मार की है, 16,000 रुपए का एक आदमी 17 की तनख्वाह लेता है, एक 15 एक के, ये पता नहीं गरीब कितना ही बेचारा सादा है। मेरे अकाउंट में कोई 9 बिलियन 9.2 बिलियन 17,000 मेरी तनख्वाह हो तो मैं तो डकार मार दूं, मैं कहूँ है ही नहीं है, जाओ जो करना है। दूसरा जिसकी तनख्वाह 15,000 रुपए का मुलाजम है, गवाही दे रहा है, उसके अकाउंट से 3.2 बिलियन रुपीज गए हैं ट्रांजैक्शन। ये गरीब ऐसे ही इनके नीचे लगा हुआ है। बगावत करो, बगावत करो, बगावत करो इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों, बेईमानों, करप्ट दुनिया में हमारी दौलत लूट कर लेके गए और इमरान खान का। राना सनाउल्लाह का कहना है कि शेख रशीद खुद को गेट नंबर 4 का तर्जुमान बताता है। अगर इसने ही बीच चौराहे पर भांडा फोड़ना है तो फिर यकतरफा बातें नहीं होंगी, फिर दूसरी तरफ से भी जवाब आएगा। ये जो कहते हैं कि हम एक पेज पर हैं तो फिर इस पेज को भी पढ़ा जाएगा। राना सनाउल्लाह ने एक इंटरव्यू में कहा कि फौज और हुकूमत एक पेज पर नहीं। वो कब मानते हैं कि हम सिलेक्टेड हैं, हम चल
नहीं रहे चलाए जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान जब धरना खत्म कर रहे थे तो इन्होंने कहा था कि हमसे कुछ वादे हुए हैं। ठीक है, इनकी मुलाकात हुई होगी। अगर इस मुलाकात का एक हिस्सा पिंडी वाले साहिब बता रहे हैं तो फिर इसका दूसरा हिस्सा मौलाना फजलुर रहमान को बताना पड़ेगा। मुस्लिम लीग नून ने पार्लियामान में हुकूमत के साथ ताउन न करने का ऐलान कर दिया। मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि कौमी असम्बली के स्पीकर का मैंडेट नहीं कि वो गिलगित बिल्तिस्तान के मामले पर इजलास बुलाए। गिलगित बिल्तिस्तान के इंतखाबात आ रहे हैं, इसीलिए ये शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करना चाहते हैं। नालायक और करप्ट टोला पाकिस्तान पर मुसल्लत है। शहबाज शरीफ के खिलाफ 58 वॉल्यूम्स के ऊपर मुश्तमिल रेफरेंस इस केस में दायर कर दिया गया है। 58 वॉल्यूम के ऊपर मुश्तमिल रेफरेंस दायर कर दिया गया है। इन्वेस्टिगेशन नैब की तरफ से कंप्लीट हो चुकी है। नैब की तरफ से इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है और 110 विटनेसेस की स्टेटमेंट कलमबंद हो चुकी है। अप्रूवर्स की स्टेटमेंट कलमबंद हो चुकी है और इंतहा इस सियासी इंतकाम की यहाँ तक पहुँच गई कि 58 वॉल्यूम्स के अंदर भी एक जगह पर भी 58 वॉल्यूम्स में एक लाइन ऐसी नहीं है जो शहबाज शरीफ के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी या कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम तक लगाती हो। इल्जाम तक लगाती हो। 110 गवाहान के अंदर, गवाहों की स्टेटमेंट के अंदर एक लाइन ऐसी नहीं है, एक लफ्ज शहबाज शरीफ के नाम पर नहीं लिखा गया। वहां उन गवाहान की स्टेटमेंट के अंदर शहबाज शरीफ का नाम तक नहीं है। डॉक्टर बाबुर अवान कहते हैं कि पाकिस्तानी सजा याफ्ता मुजरिम की वापसी के खिलाफ कोई कानूनी रुकावट नहीं है। वज़ीर आज़म के मुशीर बाबुर अवान ने अपने ट्वीट में कहा कि नवाज शरीफ की मफरूरी के इम्कानात जीरो हैं। पाकिस्तानी सजा याफ्ता मुजरिम की वापसी के खिलाफ कोई कानूनी रुकावट नहीं है। अजीब शेर हैं कि घर वापसी से भी घबराते हैं। नवाज लीग की सियासत कभी गिरेबान तक पहुंचती है तो कभी पायदान पर। फ्याजुल हसन चौहान कहते हैं कि बाबुर कादरी को कश्मीरी अवाम के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठाने की सजा दी गई। भारत ऐसे ऊंचे हथकंडों से कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी को दबा नहीं सकता। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ्याजुल हसन चौहान ने कश्मीरी वकील बाबुर कादरी के बेमाना कत्ल की मज़म्मत करते हुए कहा कि बाबुर कादरी ने भारतीय स्टैब्लिशमेंट की जानिब से कत्ल गारत गरी को हर फोरम पर बेनिकाब किया। भारत मुतासिब मीडिया पर बाबुर कादरी ने कश्मीरियों के हकूक की हिमायत में आवाज़ बुलंद की। लायर्स क्लब कश्मीर के फोरम से बाबुर कादरी ने 5000 से ज़ायद ज़रूरतमंदों की मदद की। आज कश्मीर का हर नौजवान बुरहान वानी और बाबुर कादरी जैसी नौजवान क़यादत की तलाश में है। वफाकी वजीर बराए इंसानी हकूक शीरीन मिजारी का कहना है कि जिनसी ज्यादती के मुलजिमों को अवामी मकामात पर लटकाने के बारे में कोई कानून नहीं लाया जा रहा। वफाकी वजीर शीरीन मिजारी ने अपने एक बयान में कहा कि काबीना में ज्यादती से मुतल्लिक कानून साजी का फैसला हो गया। हुकूमत की तरफ से औरतों, बच्चों, ख्वाजा सराओं पर जिनसी तशद्दुद से मुतल्लिक बिल जल्द आ रहा है। ज्यादती करने वाले की सजा का तयन अभी नहीं हो सका है। किसी को भी मुतासिरा फर्द का नाम अफशा करने की इजाजत नहीं होगी। जो भी मुतासिरा होने वाले की शनाख्त जाहिर करेगा, इसे सख्त सजा दी जाएगी। गन्ने के काश्तकारों के वाजिबात की अदायगी में ताखीर, वजन और अदायगी में गैर कानूनी कटौती पर 3 साल कैद और 50 लाख जुर्माना की सजा होगी। हुकूमत ने शुगर फैक्ट्रीज तरमीमी ऑर्डिनेंस 2020 जारी कर दिया। पंजाब शुगर फैक्ट्रीज एक्ट 1950 में बुनियादी तब्दीलियां कर दी गई। शुगर मिल गन्ने की वसूली की बाज़ाबिता रसीद जारी करने की पाबंद होगी। गन्ने के वाजिबात काश्तकार के अकाउंट में भेजे जाएंगे। कंधा जात पर शुगर मिल के एजेंट मिल की बाज़ाबिता रसीद जारी करने के पाबंद होंगे। शुगर मिल्स की जानिब से किसानों को कच्ची रसीद जारी करना जुर्म होगा। कैन कमिश्नर को काश्तकारों के वाजिबात का तयन और वसूली का इख्तियार दे दिया गया है। वाजिबात की वसूली बाजरिया लैंड रेवेन्यू एक्ट की जा सकेगी। काश्तकारों के वाजिबात न करने पर मिल मालिक गिरफ्तार और मिल की कर्की की जा सकेगी। डेप्यूटी कमिश्नर्स बतौर एडिशनल कैन कमिश्नर गिरफ्तारी और कर्की के अहकामात पर अमल दरामद के पाबंद होंगे।
गन्ने की क्रशिंग ताखीर से शुरू करने पर 3 साल कैद और योमिया 50 लाख जुर्माना होगा। शुगर फैक्ट्रीज एक्ट के तहत जुर्म नाकाबिले जमानत और काबिले दस्तअंदाजी पुलिस बना दिया गया। पाक फौज की रहीम यार खान और सालेह पिट में फौजी मशकें जारी। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज ने मशकों का मुआयना किया। ISPR के मुताबिक पाक फौज की रहीम यार खान और सालेह पिट में फौजी मशकें जारी हैं। पाक फौज के जवान पेशावराना सलाहियतों का मुजाहिरा कर रहे हैं। फौजी मशकों में कराची और पन्नू आकिल के जवान हिस्सा ले रहे हैं। बलूचिस्तान के जिला कोहलू में लेविस फूड्स तकरीबकारों के ठिकाने से भारी तादाद में भारतीय और रूसी साख्ता असलहा गोला बारूद बरामद कर लिया। लेविस हुकाम के मुताबिक जिला कोहलू के तहसील मावन के इलाके तालाब में खुफिया इत्तला पर तकरीबकारों के ठिकाने पर कार्रवाई की। डिप्टी कमिश्नर कोहलू के मुताबिक तकरीबकारों के ठिकाने से भारी तादाद में भारतीय और रूसी साख्ता असलहा गोला बारूद बरामद कर लिया। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में पुलिस और जुराइम पेशा अफराद के दरमियान फायरिंग के तबादले में पुलिस ऑफिसर शहीद हो गया। गोलियां लगने से 4 मुलजिम भी जख्मी हुए और फरार हो गए। कराची के इलाके फिरोजाबाद से मुलजिमों ने गाड़ी चोरी की। पुलिस ने डाकुओं का ताकुब किया। इसी दौरान दोनों जानिब से फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें सब इंस्पेक्टर रहीम खान शहीद हो गया, जबकि 4 मुलजिम भी जख्मी हो गए। मुलजिम कुछ दूर ही गए थे कि इनकी गाड़ी खराब हो गई और वो गाड़ी वहीं छोड़कर भाग निकले। पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में ले लिया। गाड़ी पर गोलियों के वाज़ेह निशानात मौजूद थे। शहीद सब इंस्पेक्टर रहीम गुलिस्तान जौहर थाने में तैनात था। IG सिंध ने वाक़े का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। झूठ नहीं सिर्फ सच, मुबालगा नहीं सिर्फ हकायक, प्रोपेगेंडा नहीं सिर्फ मालूमात, तज्जिया नहीं सिर्फ रिपोर्टिंग, हुकूमती इक़दामात, ऑपोजिशन के बयानात, सब बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शुएब हाशमी। खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की, तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। वेलकम बैक। मुल्क भर से हिंदू बरादरी के अरकान का भारतीय शहर जोधपुर में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं की पुरअसरार हलाकत के खिलाफ इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सामने धरना। रुकन कौमी असम्बली और पाकिस्तान हिंदू कौंसिल के सरपरस्त आला रमेश कुमार की सरबराही में सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से बड़ी तादाद में हिंदू बरादरी के अरकान का कारवां गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद पहुंचे। धरने के शुरा ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की। उन्होंने भारतीय हुकूमत से इस अलमनाक वाक़े की शफाफ तहकीकात करवाने का मुतालबा किया। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के सरबराह आला डॉक्टर रमेश कुमार का सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि हिंदू बरादरी का पुरअमन एहतजाज मुतालिबात की मंजूरी तक जारी रहेगा। मुल्क में जमहूरियत की बका के लिए तवील जद्दोजहद करने वाले गैर मुतनाज़ शख्सियत और बेदाग किरदार के मुनफरद सियासतदान बाबाए जमहूरियत नवाबजादा नसरुल्लाह खान को हमसे पिछले 17 बरस बीत गए। आज उनकी 17वीं बरसी मनाई जा रही है। देखते हैं ये रिपोर्ट। कल जिसे अहले नजर कहते थे ईरान सगीर, आह ये कौमे नजीबो चिरब दस्तो तरदमार, है कहाँ रोजे मुकाफाते खुदाए देर। पाकिस्तान में सियासत की बात हो तो नवाबजादा नसरुल्लाह खान का सियासत में कोई सानी नहीं। नवाबजादा नसरुल्लाह खान ने हमेशा सियासी जमातों के इत्तेहाद को तरजीह दी। कोई भी सियासी अलायंस हो, उसके क़याम में नवाबजादा का किरदार हमेशा मरकजी ही रहा। नवाबजादा नसरुल्लाह खान ने 15 साल की उम्र में 1933 में मजलिस एहरार से अपनी सियासत का आगाज किया। क़याम पाकिस्तान के बाद मुस्लिम लीग में शामिल हुए।
70 साल से जायद अरसे तक मुल्की सियासत में अहम किरदार अदा करने वाले नवाबजादा नसरुल्लाह खान का अपना मुनफरद सियासी मिजाज था। दौरे आमरीत में सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करना और फिर मुश्तरका सियासी जदोजहद नवाबजादा नसरुल्लाह खान का ही कारनामा था। नवाबजादा नसरुल्लाह खान की बरसी के मौका पर उनके बेटों का कहना था, नवाबजादा नसरुल्लाह खान की कोशिश इक्तदार के लिए नहीं थी, बल्कि उनकी ख्वाहिश जमहूरियत थी। जमहूरियत पर यकीन रखने वाले तालिब इल्मों के लिए नवाबजादा की खिदमत रोशनी मशल की तरह है, जिसकी स्ट्रगल डेमोक्रेसी के लिए थी। और मैं समझता हूँ कि आज जो जमहूरियत पर यकीन रखने वाले तालिब इल्म हैं, उनके लिए नवाज़ साहब की स्ट्रगल जो है वो यूँ समझें कि एक ऐसी रोशन मशल की तरह है जो उन्हें राह दिखाएगी। और नवाज़ साहब की सारी ज़िंदगी जो है वो इसी उसमें गुजरी। नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब की ये 17वीं बरसी है। सारी उम्र, तमाम उम्र उन्होंने पाकिस्तान की तरक्की के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए और अवाम के बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, कश्मीर के बारे में सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों के मुताबिक इस्तिस्वाब राय की खातिर ये तमाम तर वो कोशिश करते रहे सारी उम्र। नवाबजादा नसरुल्लाह खान ने मुफाद और इक्तदार की सियासत से बालातर होकर मुल्की जमहूरियत की बका के लिए सियासत की। 17 साल तक कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करने वाले नवाबजादा नसरुल्लाह खान की पूरी जिंदगी भरपूर सियासी जद्दोजहद में गुजरी। 26 सितंबर 1968 को पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी की बुनियाद रखी। अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम में सियासतदानों को ARD के प्लेटफॉर्म पर जमा किया। उनके वफात के 17 साल बाद भी सियासतदान इत्तेहाद बनाने के लिए नवाबजादा नसरुल्लाह खान के ही अफकार को अपने सामने रखते हैं। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 7 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 6444 हो गई। मजीद 798 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीज 3,09,000 हो गए। 544 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 2,94,740 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 7 मरीज जाँ बहक हुए हैं। पंजाब में 2229, सिंध में 2477, खैबर पख्तूनख्वा में 1258, इस्लामाबाद में 181, बलूचिस्तान में 145, गिलगित बल्तिस्तान में 84 और आज़ाद कश्मीर में 70 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 3 करोड़ 25 लाख हो गई। हलाकतें 9,88,000 हो गई, जबकि 2 करोड़ 40 लाख से ज्यादा मरीज सेहतयाब भी हो चुके। मौजूद कोरोना वायरस काबू में नहीं आ सका। अमेरिका समेत दीगर ममालिक में कोरोना के वार जारी हैं। अमेरिका में 2,07,540, ब्राजील में 1,40,000, मैक्सिको में 75,440, भारत में 92,347, जबकि ईरान में 25,222, अफगानिस्तान में 1,451 और सऊदी अरब में 4,600 अमवात हो चुके हैं। आलमी उफक से खबर यह है कि अफगानिस्तान के सूबे पख्तीका में अफगान फोर्सेज और तालिबान के दरमियान शदीद झड़प हुई। सिक्योरिटी फोर्सेज से झड़पों में 65 अफगान तालिबान हलाक और 35 जख्मी हो गए। अफगानिस्तान में अमन ख्वाब बनकर रह गया। अफगान मशरकी सूबे पख्तीका में तालिबान ने अफगान फौज के हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज और तालिबान के दरमियान खूनरेज झड़प में 65 अफगान तालिबान हलाक और 35 जख्मी हो गए। तालिबान की फायरिंग से अफगान फोर्सेस के 3 एहलकार हलाक और 6 जख्मी हुए। अफगान हुकाम ने फायरिंग से जख्मियों और हलाकतों की तस्दीक कर दी। ग्लोबल गवर्नेंस से मुतालिक सलामती कौंसिल के इजलास में चीनी और अमरीकी हुकाम में तलकलामी। चीनी नुमाइंदे ने कोरोना से मुतालिक बीजिंग पर इल्जामात के जवाब में अमरीकी नुमाइंदे को खरी खरी सुना दी। चीन और अमरीका में कशीदगी किसी से ढकी छुपी नहीं। सलामती कौंसिल के इजलास में भी दोनों ममालिक के दरमियान तलखियां मजीद वाज़ेह हो गईं। अमरीकी चीनी नुमाइंदे के दरमियान कोरोना मामले पर खूब दो तकरार हुई, जबकि बीजिंग पर कोरोना इल्जामात लगाने पर चीनी नुमाइंदे ने अमरीकी हुक्काम को खूब आड़े हाथों लिया। कहा कि बस बहुत हो गया, अमरीका दुनिया के लिए पहले ही काफ़ी मुश्किलात खड़ी कर चुका है। अगर किसी भी इल्ज़ाम लगाया जा सकता है तो वो चंद अमरीकी सियासतदान हैं। बड़ी ताकत का रवैया बड़ों जैसा होना चाहिए, मगर अमरीका अपने रवैये के बायस दुनिया में तन्हा खड़ा है।
फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में मैगजीन चार्ली एब्डो के करीब चाकू हमले में 4 अफराद जख्मी हो गए। 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक, जबकि पुलिस ने एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार कर लिया। फ्रांस का दारुल हुकूमत भी शिद्दत पसंदों के घेरे में आ गया। नामालूम अफराद ने चाकू के वार करके 4 अफराद को जख्मी कर दिया। हमले में जख्मी 2 अफराद की हालत तशवीशनाक, 4 जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक हमला मैगजीन चार्ली एब्डो के दफ्तर के करीब हुआ। जाए वकुआ से एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया गया। 2 मुश्तबा अफराद फरार होने में कामयाब हो गए। बरतानिया के शहर जनूबी लंदन में पुलिस स्टेशन के अंदर फायरिंग से एक पुलिस अफसर हलाक हो गया। पुलिस ने एक मुश्तबा नौजवान को हिरासत में ले लिया। बरतानवी शहर वेस्ट लंदन में 23 साला नौजवान ने दौरान तफ्तीश पुलिस स्टेशन में फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से एक पुलिस ऑफिसर हलाक हो गया। फायरिंग के बाद पुलिस ने नौजवान को गिरफ्तार तो कर लिया। फायरिंग से जख्मी होने वाले पुलिस ऑफिसर को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। जख्मों की ताप न लाते हुए पुलिस एहलकार रास्ते में ही दम तोड़ गया। पुलिस ने मुश्तबा शख्स को भी जख्मी हालत में गिरफ्तार करके अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुलजिम पर पुलिस एहलकार पर फायरिंग के बाद खुदकुशी की कोशिश का इल्जाम है। मुत्तहिदा अरब इमारात के वजीर मुमलिकत बराए खारजा अनवर करकाश ने इसराइल से अमन मुआहदे को खित्ते में अमन का ज़ामिन करार दे दिया। कहते हैं कि अमारात और इसराइल के दरमियान मुआहदे से खित्ते में अमन आएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर मुमलिकत बराए दाखिला अनवर करकाश कहते हैं कि अमारात और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात का आगाज़ नए सफ़र की शुरुआत है। अमन मुआहदे से खित्ते में इस्तेहकाम को फ़रोग़ मिलेगा। 2 तरफ़ा ताल्लुकात इस्तवार होने से अमन की राहें खुलेंगी। कोरोना केसेस में कमी के बाद दुनिया में क्रिकेट के मैदानों की रौनकें बहाल होने लगी। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की टीमों को दौरा इंग्लैंड की इजाजत दे दी। दुनिया भर में कोरोना केसेस में कमी के बाद खेल के मैदानों के दरवाजे खुलने लगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दौरा न्यूजीलैंड की इजाजत दे दी। दोनों टीमें न्यूजीलैंड पहुंचने पर 14 रोज करंतना में गुजारेंगी। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के सरबराह डेविड वाइट कहते हैं कि मुमकिन तौर पर दोनों टीमों के खिलाड़ियों को क्राइस्टचर्च में करंतना कराया जाएगा। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की टीमें कमर्शियल एयरलाइन से न्यूजीलैंड पहुंचेंगी। शायकीन क्रिकेट के लिए खुशखबरी, जिम्बाब्वे के बाद साउथ अफ्रीका का दौरा पाकिस्तान का भी ऐलान कर दिया गया। जनूबी अफ्रीका की टीम जनवरी 2021 में पाकिस्तान का दौरा करेगी। शायकीन क्रिकेट हो जाएं तैयार, क्रिकेट मैचेस की आने वाली है बहार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिम्बाब्वे के बाद साउथ अफ्रीका की टीम के दौरे पाकिस्तान का भी ऐलान कर दिया। पीसीबी ने 2021 में प्रोटीन्स की मेज़बानी करेगा, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने साउथ अफ्रीका के दौरे पाकिस्तान की तस्दीक करते हुए कहा कि खुशाइन बात है कि कोरोना केसेस में कमी आ रही है। पीसीबी डोमेस्टिक क्रिकेट के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट सीरीज करवाने जा रहा है। बन्नू में पोलियो लेडी हेल्थ वर्कर पर तशद्दुद, बैग और मोबाइल फोन छीन लिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पोलियो लेडी हेल्थ वर्कर पर दौरान ड्यूटी इलाका दाऊद शाह में तारिक नामी शख्स ने हमला कर दिया। मुलजिम ने हेल्थ वर्कर को तशद्दुद का निशाना बनाया, पोलियो वैक्सीन किट और मोबाइल फोन भी छीन लिया और कत्ल की धमकियां देते हुए फरार हो गया। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम तारिक को गिरफ्तार कर लिया। रानीपुर में घरेलू तनाजे पर बाप ने बेटे की जान ले ली। फायरिंग से मुलजिम की बहू शदीद जख्मी हो गई। रानीपुर में तकरार पर बाप ने बेटे और इसकी बीवी पर फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से हुसैन बख्श मौका पर ही दम तोड़ गया, जबकि मुलजिम की बहू सरदारा खातून शदीद जख्मी हो गई। मंडी बहाउद्दीन पुलिस की जिला के मुख्तलिफ इलाकों में नाजायज असलहा मालिकान के खिलाफ कार्रवाइयां। सोशल मीडिया पर नाजायज असलहा की नुमाइश करने वाले समेत 6 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। मंडी बहाउद्दीन पुलिस ने बगैर लाइसेंस के असलहा रखने पर 6 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमों के कब्जे से 3 पिस्टल, 1 क्लाशनकोफ, 2 राइफल भी बरामद कर ली गई।
मंशनाबाद में डकैती की वारदातें ना रुक सकीं। जनरल स्टोर पर दूसरी मरतबा डकैती की वारदात टीवी टुडे ने सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। मंडी सादिकगंज में जनरल स्टोर में 2 नकाबपोश डाकू दाखिल हुए और 5 लाख रुपए से ज्यादा की रकम लूट कर फरार हो गए। डकैती की सीसीटीवी फुटेज टीवी टुडे ने हासिल कर ली। जनरल स्टोर पर डकैती की ये दूसरी वारदात है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले। मैं हूं सना अरशद। खेल की सियासत और खेल से खिलवाड़, खेल के उजड़े मैदान और बेपनाह टैलेंट, इलाकाई खेलों से आलमी मुकाबलों तक, किसकी हुई जीत किसकी हुई हार, मैं आपको रखूंगी बाखबर।